were discussing electron affinity. The concept under discussion yesterday was first and second electron affinity. So would you like to, anyone in the class would like to explain that what is first electron affinity? First electron affinity. And then what is second electron affinity? Yes. How to define first electron affinity and then how to define second electron affinity. For the definitions, beta, you need to know the equation. Equation explains the concept of electron affinity. How? That when a gaseous atom gains 1 mole electron, if 1 mole gaseous atom gains 1 mole electrons to make 1 mole gaseous 1 minus ions, right? When 1 mole gaseous atom gains 1 mole electrons to make 1 mole gaseous 1 minus ions, then this energy changes first electron affinity, right? So in first electron affinity, 1 minus ion will form, or you can say mono-negative ion is formed in first electron affinity. The 1 minus ion or mono-negative ion is formed. Okay. Achha, then comes the concept of second electron affinity. Beta, ये definitions हमने लिखी थी कल. If you consult the slides which I shared yesterday on WhatsApp group, so you will find definitions there. या yesterday की recording देखें तो definitions will be there. So second electron affinity, beta. So for इसकी definition के लिए you have to consult equation again. So for second electron affinity, 1 minus gaseous ions will gain 1 mole electrons. When 1 mole electrons added to 1 mole, 1 minus gaseous ions to make di-negative gaseous ion. So when di-negative ion is formed from mono-negative ion, then this energy changes second electron affinity. जी बेटा, any confusion? Any confusion, beta? No, sir. Okay, so but if I write the equation like this, which energy change is represented by this equation? ये equation कौन सी energy change को show करेगी? Combined energy change of. हाँ, शाबाश. Combined energy First. change of first plus second electron affinity. Okay. The reason is बेटा कि these 2 mole electrons में पहले 1 mole electron add होंगे और फिर the other mole electrons add होंगे. ठीक है, तो पहले first electron affinity फिर second electron affinity involve होगी and a di-negative ion is formed. अगर हम इसके step wise अगर show करें तो step wise अभी हमने show किया था पिछले पेज पे. It's like this कि पहले 1 minus ion form होगा and then फिर 2 minus ion form होगा, right? So बेटा अब अगर हम इसको add करें तो you know this O1 minus and O1 minus will be cancelled out and combined equation will be like this. This is O2 minus. ठीक है? तो अब बताओ कि अगर हम energy profile diagram show करें तो how many steps we need to show? If this is energy axis. If this is energy axis, so how many steps we need to show? हाँ, इसमें ये बात ध्यान में रखो कि जो first electron affinity है, first electron affinity is exothermic. Why it is exothermic? ये मैं अभी थोड़ी देर बाद explain करूँगा कि why first electron affinity is exothermic, but the second electron affinity is endothermic, right? So first electron affinity exo है, second electron affinity endo है. How many steps are there? तो 2 steps हैं. तो energy profile diagram में दो peaks होनी चाहिए. This is first peak जो कि exo है and the other peak should be endo. ठीक है? ये 2 peaks हैं. You started from O gaseous and you ended at di-negative gaseous ion. Sir, जी. जो डाई नेगेटिव है ये ऑक्सीजन गैसेस ऑक्सीजन एटम से ज्यादा होगा लाइक एनर्जी प्रोफाइल. हाँ, ये इसकी एनर्जी प्रोफाइल की पोजीशन क्या होगी? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू नो एट दिस स्केल. ठीक है, ये आप नीचे भी शो कर सकते हो, ऊपर भी शो कर सकते हो. इससे पैटर्न दिखाना है कि ये पहली पीक है ये एक्सोथर्मिक शो करे और दूसरी पीक इस तरह से हो कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करे. बाकी ये O2 नेगेटिव को कहाँ एंड करना है, दिस इज योर चॉइस. ठीक है. अच्छा बेटा, इस पॉइंट पे हम क्या शो करेंगे?
ये जो ब्लैक मैंने शो किया इसको मैं एक्स लेबल कर रहा हूँ। एक्स क्या है बेटा? एक्स क्या ऑक्सीजन होगा? -1, हाँ, लेकिन उसका उसका नेम क्या हो सकता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। एंड बेटा इंटरमीडिएट इन दिस केस इज O1 माइनस। आपको पता है ना, इंटरमीडिएट इज दैट पार्टिकल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप एंड यूज्ड इन अदर स्टेप। तो जो पार्टिकल कैंसिल हो रहा है ना, वो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे स्टेप में यूज्ड हो रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस O1 माइनस इज इंटरमीडिएट। ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एंड बेटा कॉन्सेप्ट इज कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कौन सा आयन फॉर्म होगा? नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। नेगेटिव आयन फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज दैट एनर्जी चेंज व्हिच इज रिलेटेड विद द नेगेटिव आयन फॉर्मेशन। ठीक है। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा, इस एनर्जी से कौन सा आयन फॉर्म होगा? पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। फ्रॉम आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों एनर्जी चेंजेस हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटेड टू द नेगेटिव आयन फॉर्मेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। एनी क्वेश्चन बेटा? ओके। दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स जो है वो उनके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एसोसिएट होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is related या associated to non-metals only, related to non-metals only. This is very important thing, okay? कि आप नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इज रिलेटेड टू फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिलेटेड टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनी कंफ्यूजन बेटा? यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो इक्वेशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों पे अप्लाई होता है। नॉन मेटल से भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन मेटल्स एज वेल एज फ्रॉम मेटल्स। लेकिन जहां तक as far as electron gain is concerned, so electron gain is related with non-metals only. So electron affinity is associated with non-metals only. Lekin ionization energy is associated with both metals and non-metals. Any confusion, beta? Any confusion? No, sir. No, sir. Okay. अच्छा. Yes. Now, beta, अब इसको you should proceed like this. For example, if I consider nitrogen, do you know the valency of nitrogen, beta? What is the valency -3. of -3? So what happens with nitrogen? Now you will start from gaseous nitrogen atom, and first it will gain one more electrons to make N1 minus. ठीक है? अभी कौन सी energy change involved है? Which energy change is involved with this equation? First electron. Sure. This is first electron affinity, right? And then this N1 minus gaseous will gain further one more electrons to make N2 minus. So this is second electron affinity. And then N2 minus will gain one more electrons to make N3 minus, and here it will stop. तो नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्यों है? क्योंकि वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 माइनस है। ठीक है। तो यू हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज रिलेटिव टू वैलेंसी, राइट? तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी नाइट्रोजन की। अब आप मुझे बताओ कि सल्फर अगर मैं लूं तो कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी सल्फर की? 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी। 2 electron affinities for sulfur. Why? Because valency of sulfur is di-negative. So अगर equations construct करनी पड़े तो this is equation for the first electron affinity and this is equation for second electron affinity for sulfur. Right? जी बेटा, any confusion? Any confusion?
अच्छा, अब बेटा ये बताओ कि फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी? फ्लोरीन विल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों है बेटा? फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है? एंड दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इक्वेशन विल बी लाइक दिस। जी बेटा, why second electron affinity for fluorine is difficult? ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर शेल में से क्योंकि फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इट्स शेल इज कंप्लीट। जब फ्लोरीन का शेल कंप्लीट हो जाए एक इलेक्ट्रॉन से तो इट विल नॉट रिक्वायर एनी अदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में एंटर होगा तो एक न्यू वेकेंट शेल में एंटर होगा, तो वो शेल सारा अनस्टेबल होगा, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को वी रिलेटेड विद वैलेंसी। ठीक है, जिस एटम की जो वैलेंसी है उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज डेवलप होंगे। अच्छा, now beta, come to this point that first electron affinity is exothermic, second electron affinity is endothermic, and third electron affinity is more endothermic, और fourth electron affinity और भी ज्यादा endothermic हो। अब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि why first electron affinity is exothermic and the other electron affinities are endothermic. Why is it so? ऐसा क्यों है? First electron affinity will be exothermic or second electron affinity will be endothermic. Okay, so let us discuss this thing. Acha. Now let us consider a bit of fluorine, right? So fluorine has 7 electrons, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, and sorry, fluorine has 9 electrons, 7 in valence shell. Total electrons of fluorine are 9 और valence shell में 7 electrons है। अच्छा, now this is the electron जिसको फ्लोरीन ने गेन करना है। लेट्स इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करना, ये इलेक्ट्रॉन है जिसको गेन करना है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। यू नो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जिसने इंटर होना है शेल में, राइट? जब ये इंटर होगा तो इट विल बी लाइक दिस 1 2 एंड 1 माइनस। जब इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो इट विल बी हियर, राइट? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, एंड हियर यू हैव न्यूक्लियस। ओके, फ्लोरीन का है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ने क्या अप्लाई करना है? न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियस अप्लाइज व्हाट? न्यूक्लियर पुल। ठीक है, ये न्यूक्लियर पुल अप्लाई करेगा किस पे? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। ये तो न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल अप्लाई करेगा। बेटा ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। जी लारे बेटा, आपको क्लियर है ये बात? आपने बेटा क्लास ही लेट ज्वाइन की है। मिसबा बेटा आपने भी लेट ज्वाइन की है क्लास, और इमामा आपने भी लेट ज्वाइन की है। तो आप लोगों को ये पिक हो रहा है कि व्हाट क्या डिस्कशन चल रही है? अच्छा ठीक है, न्यूक्लियस ने क्या अप्लाई करना है? न्यूक्लियर पुल अप्लाई करना है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एंटर होगा शेल में। तो ये जो न्यूक्लियर पुल है ना, ये अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा यहाँ रिपल्शन भी तो होगी ना, यहाँ रिपल्शन भी होगी। रिपल्शन किसके दरमियान में होगी? रिपल्शन किसके दरमियान में होगी? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, इनमें रिपल्शन होगी या नहीं? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के भी हैं, तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी, जबकि न्यूक्लियस और बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगी। ये अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है, एक रिपल्शन। ये कॉन्सेप्ट बेटा बिल्ट हुआ। फिर देखें बेटा, ये देखें, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, राइट? फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स हैं, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ फ्लोरीन, राइट? अच्छा, और दिस इज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन ने शेल में एंटर होना, दिस इज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, अब बताओ कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के दरमियान होगी? अट्रैक्शन बताओ। हेलो, आप लोग बेटा सुन रहे हैं मुझे सब? जी सर। यस, हाँ, अट्रैक्शन किसके और किसके दरमियान होगी? between the nucleus and the incoming electron. ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो इट्स अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लेकिन रिपल्जन भी होगी। तो जो रिपल्जन है वो किसके और किसके दरमियान होगी? जी इमामा बेटा, रिपल्जन किसके और किसके दरमियान होगी? इमामा बेटा, यू देयर? जी निम्रा बेटा, रिपल्जन किसके और किसके दरमियान होगी? incoming electron and electron of fluorine. हाँ शाबाश, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, ये रिपल्जन है असल में। ये जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन है। मैं चाह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो जाए। तो बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक हो गया? अच्छा ओके, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। अब मुझे जरा ये बताओ, ये बेटा ये मुझे बताओ कि ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका ऑक्सीजन में एंटर होना इजी है, या ये नीचे वाले जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है इनका O1 माइनस में एंटर होना इजी है? इन दोनों इक्वेशंस में किस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी है? फर्स्ट में इजी है और सेकंड में डिफिकल्ट है। मोइस बेटा आप क्या कहते हो? जी सर। किस केस में, दो इक्वेशंस आपके सामने हैं ठीक है स्क्रीन पे, इसमें किस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी है? सर फर्स्ट। हाँ, सेकंड में क्यों डिफिकल्ट है? सर रिपल्जन। हाँ, बिकॉज देखो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन सेकंड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं नेगेटिव आयन में। तो इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव आयन के दरमियान रिपल्जन होगी, राइट? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफिकल्ट है जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी है। जी मोइस बेटा। सर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता? हाँ, न्यूट्रल एटम में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, लेकिन जो नेगेटिव आयन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है। हाँ, यही पॉइंट, इस पॉइंट तक मैं लाना चाह रहा था आप लोगों को। तो इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अट्रैक्शन होगी किसके? न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है? और रिपल्जन होगी बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। और फिर ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा कि अगर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा अट्रैक्शन ग्रेटर होगी, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, incoming electron is greater than the repulsion between incoming electron and already present electrons, right? तो जब ये अट्रैक्शन ग्रेटर हो तो फिर उस केस में एनर्जी चेंज विल बी एक्सोथर्मिक, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, क्योंकि अट्रैक्शन ग्रेटर है। यहां कंफ्यूजन है बेटा? कंफ्यूजन है तो यू शुड आस्क क्वेश्चन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अट्रैक्शन ग्रेटर होगी रिपल्जन से, दैट इज व्हाई नेट एनर्जी चेंज विल बी एक्सोथर्मिक। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ईमान खान बेटा आपको क्लियर है ये पॉइंट? अबीर बेटा आपको क्लियर है? जी सर। ओके अच्छा, अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा उसमें
अब देखो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में एंटर होगा। ये पता ना आपको, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखो, ये थी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? नेगेटिव आयन में। ये नेगेटिव आयन है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में एंटर होगा। दैट इज व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अट्रैक्शन ग्रेटर होगी, अट्रैक्शन ग्रेटर होगी। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में एंटर होगा, तो इस वजह से यहां पे रिपल्शन ग्रेटर होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिपल्शन ग्रेटर होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अट्रैक्शन ग्रेटर होगी, राइट। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिपल्शन जो है ना वो ग्रेटर होगी। और रिपल्शन आपको मैंने बता दिया, वो हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होगी, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होगी। रिपल्शन ग्रेटर होगी अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सर, जी जो पहले जी जी। से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं फ्लोरीन के फॉर एग्जांपल, तो वो आपस में रिपेल करते, सिर्फ वही करते हैं जो इनकमिंग होते हैं? बेटा जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होती है, लेकिन कुछ रिपल्शन तो वो जो है अपोजिट स्पिन की वजह से ओवरकम हो जाती है, और बाकी न्यूक्लियर पुल भी तो होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन को किसी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं। अब जाहिर है जब बाहर से एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में नहीं पड़ा हुआ ना। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन न्यूक्लियस में नहीं है। दैट इज द रीजन बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा रिपल्शन भी जनरेट करेगा ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जी बेटा, ये किसका क्वेश्चन है? हाउ अट्रैक्शन इज ग्रेटर व्हेन द एटम इज न्यूट्रल। यस बेटा, असल में जो फ्लोरीन है ना, जो एटम्स रेडियल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके रेडियाई कम होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट शेल के बाहर भी अवेलेबल होता है। ये देखो, ये जो मैंने डायग्राम बताया ना, तो इस डायग्राम में ये जो न्यूक्लियस है इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट है शेल के बाहर भी। और फिर दूसरा सबसे अहम बात है इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। इस एटम ने अपना वैलेंस शेल भी तो कंप्लीट करना है, तो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल और फिर न्यूक्लियस का इफेक्ट शेल के बाहर तक भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये ग्रेटर इफेक्ट होता है न्यूक्लियर पुल का, अगर एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो फिर रिपल्शन ग्रेटर हो जाती है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में एंटर होना होता है। तो दैट इज व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी एंडोथर्मिक। यस, आप क्वेश्चन लिख के भी पूछ सकते हैं बेटा। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो देखो, यूजुअली ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन सिलेबस में पूछा जाता है। सल्फर 1 मोल इलेक्ट्रॉन and this is sulfur gaseous 1 minus, this is first electron affinity। जी बेटा, ये क्या होगी, एक्सो होगी या एंडो होगी? एक्सो। एक्सो होगी। इसका आंसर बेटा लिख सकते हैं आप अगर पूछा जाए कि वाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, तो क्या आंसर होगा? आंसर ये होगा कि the nuclear attraction for incoming electron is greater, or incoming electron is greater than the repulsion between incoming electron and already present electrons, already present electrons। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कि S1 माइनस गैशियस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स एंड इट मेक्स S2 माइनस इन गैशियस स्टेट, तो दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये अब एक्सो होगी या एंडो होगी? ये एंडोथर्मिक होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक।
Second electron affinity is endothermic. So इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन, देखिए सिंपल आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हैज टू इंटर द नेगेटिव आयन, ठीक है। सो रिपल्शन विल बी प्रेजेंट, repulsion will be present. So to overcome this repulsion, energy will be absorbed, right? Energy will be absorbed to overcome this repulsion. To overcome this repulsion. जी बेटा, you can ask question. ये देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, ये S1 माइनस भी नेगेटिव है, दोनों में रिपल्शन होगी। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब का मतलब है ये एनर्जी चेंज एंडोथर्मिक होगी। जी क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये मुझे बताएं कि थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होगी या एंडो होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक्सो होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी। व्हाट अबाउट थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जी बेटा, more endothermic than हाँ second. हाँ एंडोथर्मिक होगी, लेकिन ज्यादा एंडोथर्मिक होगी देन सेकेंड, मोर एंडोथर्मिक देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों है बेटा? थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा एंडोथर्मिक क्यों होगी? ये बताओ, ये कौन सी इक्वेशन है किस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की? और फिर ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। So this is second electron affinity and this is third electron affinity. अब किस केस में रिपल्शन ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इस केस में रिपल्शन ज्यादा होगी, यहां मोर रिपल्शन है। So more repulsion है तो this is more endothermic. Third electron affinity is more endothermic as compared to this repulsion. ठीक है? Yes. जी बेटा, question? What about fourth electron affinity? Fourth electron affinity. ये भी एंडो ही होगा, एंडो होगी, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा। हाँ, so more endothermic than third electron affinity. Then third electron affinity. Right? अच्छा, अब बेटा नाउ अगर यहां कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊं। आई होप इस सबको क्लियर हो गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडो है, राइट? Yes, sir. Okay, now beta, the next concept is this one. ये देखो, ये कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है, राइट? This is nucleus and this is incoming electron and this is another atom, ठीक है? और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है, यानी इसने शेल में एंटर होना है, ठीक है। अब बताओ किस इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी है? Which electron is easy to gain? जी हादिया, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। जी हादिया, आप क्या कहते हो? First वाला. फर्स्ट वाला। नवाल, आप क्या कहते हो? सर फर्स्ट वाला। अच्छा जी बेटा, और कोई जो इनपुट देना चाहे? जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इजी टू गेन होगा, इजी टू गेन होगा बेटा। जितना रेडियस, मोइस बेटा आपके लिए, जितना रेडियस ग्रेटर होगा उतनी शील्डिंग ज्यादा हो जाएगी। शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है, न्यूक्लियस कवर हो जाता है।
तो अगर रेडियस ग्रेटर होगा तो फिर शील्डिंग ज्यादा होगी, जब शील्डिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है, सो डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा अब इससे कॉन्सेप्ट क्या बना, क्या कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हुआ कि जितना रेडियस ग्रेटर होगा, कॉन्सेप्ट बेटा ये बना स्मॉलर रेडियस। अगर रेडियस स्मॉलर होगा तो फिर इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर ग्रेटर होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। जब इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फिर ग्रेटर होगी। जब रेडियस स्मॉलर होगा, easy to gain electron and greater will be electron affinity, and vice versa. Vice versa means if greater is the radius, if radius is greater, then difficult to gain electron, so less will be electron affinity, तो जब आप नोट्स बनाएं तो जरूर इस कॉन्सेप्ट को आप एंटरटेन करें, ठीक है। अब जब ये अगर कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ट्रेंड का, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इट मींस दैट वी हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अक्रॉस द पीरियड। तो बेटा अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस? Decreases. हाँ शाबाश, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। सो ये ट्रेंड है ना विद एटॉमिक रेडियस। दिस इज हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज, ठीक है। तो अब इसमें व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? यू शुड से रेडियस इज डिक्रीजिंग, ability to gain electron is decreasing, ability to gain electron is increasing। हमने डिस्कस किया पीछे कि जितना रेडियस कम होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो रेडियस इज डिक्रीजिंग, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases across the period, right। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड का। Any confusion? No, sir. अच्छा, and then down the group, B is down the group, what happens to atomic radius? So the radius increases down the group। लेकिन बेटा ये हम कॉन्सेप्ट पहले डेवलप कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी फॉर नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट उन एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा जो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, वो नॉन मेटल्स होंगे। So what is happening down the group? Atomic radius is increasing, so ability to gain electron is decreasing, so electron affinity will decrease down the group, right। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, अब इसको रिलेट करें बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी से। व्हाट वाज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप? आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड रिमेंबर व्हाट हैपेंस, आयोनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव आयन इज फाउंड, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम जी across the period decreases and down the group increases। हाँ, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी, जी मोहित बेटा, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ देखें किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, रिमूवल किसकी इजी है? ये वाला इलेक्ट्रॉन इजी टू रिमूव है, और ये राइट वाले इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट टू रिमूव है, क्योंकि रेडियस कम हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टू रिमूव। तो इसका मतलब इसकी होगी ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी,
यहाँ होगी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी. What happens? Ionization energy increases. लेकिन down the group, what happens to ionization energy? Down the group ionization energy यहाँ पे greater होगी ionization energy और यहाँ पे less होगी ionization energy. तो down the group ionization energy decreases. ठीक है? अब बेटा इसको कंपेयर करें इससे. लेट्स से इफ आई टेक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 या ग्रुप 17. So group 17 में we have fluorine and then chlorine and then bromine and then iodine, and group 1 में we have lithium, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium. ठीक है? अच्छा, अब रिएक्टिविटी के लिए हम कौन सी एनर्जी कंसीडर करेंगे फॉर ग्रुप 1 और कौन सी एनर्जी कंसीडर करेंगे फॉर ग्रुप 17? जी हाँ जी बेटा. For group 1, we consider ionization energy, and for group 17, electron. यहाँ कंसीडर करेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? और ग्रुप 17 में हम क्या कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्योंकि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन गेन करना है. कंसीडर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो फिर आप फिर वैसे ग्रुप 17 की दोनों नहीं होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? नहीं, अगर देखो सोडियम फ्लोराइड है तो सोडियम फ्लोराइड में सोडियम ने लूज किया और फ्लोरीन ने गेन किया ना इलेक्ट्रॉन. तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का. वो थे ना. हाँ, लेकिन आयोनिक बॉन्ड फॉर जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे. देखो मैंने शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है ना वो मेटल नॉन मेटल दोनों में पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो सिर्फ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. और दूसरी बात मैंने कल बताई थी कि आयोनिक बॉन्ड जब बनेगा, आयोनिक बॉन्ड वैसे कैसे बनता है? मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेन्स. हाँ, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो जब नॉन मेटल गेन करेगा तो नॉन मेटल की हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसीडर करेंगे. ये जो मैंने बताया था ना, जो नॉन मेटल्स भी पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सिर्फ ऐसा होता है. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हम पढ़ेंगे एंड में टेक्निक्स में, उसमें हम कंसीडर करते हैं नॉन मेटल्स के पॉजिटिव आयन. बाकी आयोनिक कंपाउंड के लिए नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाएगा, राइट? तो ये जो सीजियम है इसकी होगी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी और जो फ्लोरीन है इसकी है ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो बेटा किस एलिमेंट का किस मेटल का किस नॉन मेटल के साथ रेडिली रिएक्शन होगा? वो ये सीजियम का फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन रेडिली और रैपिडली होगा. ये रेडिली रिएक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि सीजियम रेडिली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन रेडिली गेन करेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है?